और सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट में इसको रखते हैं और डालते हैं, तो इसीलिए उस वेबसाइट में भी जा सकते हैं। आपको वेबसाइट की एड्रेस चाहिए तो आप श्री जगदीश शेट्टी से पूछ सकते हैं। और इसीलिए मूल बात यह है कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है 12 तारीख को, कि जो मैं अब अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ, और उस मैंने कहा कि इनका नागरिकता समाप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू करिए। तो पहले उनसे सफाई पूछी जाएगी। दूसरा है कि लोकसभा स्पीकर भी इसकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए एक कमेटी को बनानी पड़ेगी या एथिक्स कमेटी पर उसको सौंप देना पड़ेगा। तो मैं स्पीकर को भी एक कॉपी 1-2 दिन में भेजने वाला हूँ। प्रधानमंत्री के कार्यालय में क्या कार्रवाई के लिए निश्चित हुआ है या नहीं हुआ, ये पता लग जाएगा और उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो जो अपने को कांग्रेस की उपाध्यक्ष होते हुए दावेदार है कि इस देश की नेतृत्व करेंगे, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, जो ब्रिटिश ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अनुसार वो सिटीजन रहे हैं ब्रिटेन के, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। तो मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister of India. Dear Prime Minister, I am enclosing with this letter some authenticated documents regarding the registration in 2003 and the dissolution in 2009 of a private limited company in United Kingdom with an address located in London. The name of the company is Backops Limited, and the director and secretary of the company was Mr. Rahul Gandhi, presently Lok Sabha MP. The incorporation papers of this company number 4874597 was filed with the Registrar of Companies in England and Wales on August 21, 2003, and the dissolution was on February 17, 2009. As you can see from the company annual return, which is on page 6, bottom of the enclosed document, that Mr. Rahul Gandhi has given his date of birth correctly, but has declared himself to be a British nationality with a United Kingdom address. The annual return filed for the company on October 10, 2005 lists Mr. Rahul Gandhi as director of the company with the United Kingdom address, as well as attestation of his nationality as British. Mr. Rahul Gandhi also held 65% of the shares, of the total shares issued by this company as on that date. Some facts were repeated, namely that Mr. Rahul Gandhi as having British nationality in the annual returns filed in October 31, 2006 as well, that is next year. Finally, in the dissolution application as well, Mr. Rahul Gandhi states that his nationality is British as on the date he was appointed as director of the said company. This is prima facie a violation of the law and constitutional position in the countries as stated below. As per Article 9 of the Constitution of India, every citizen of India is barred from voluntarily acquiring citizenship of any foreign state. While UK permits dual citizenship, India emphatically does not. Article 18 prohibits an Indian citizen from accepting even foreign titles. Hence, Mr. Rahul Gandhi has prima facie committed an unconstitutional act and is therefore liable to be stripped of his citizenship and membership of the Lok Sabha. No member of Indian Parliament can incorporate a company abroad without prior permission under the existing laws and without declaring the same in his nomination form as a candidate for election to Parliament. I may also add that the Enforcement Director is aware that Mr. Rahul Gandhi has an illegal undeclared account in Pictet Bank, which is headquartered in Zurich. I believe that Mr. P. Chidambaram had cleared before demitting office for the opening of an Indian branch of Pictet Bank, which may be verified whether it has so happened. I am told by good authority that when Mr. Rahul Gandhi was taken into custody on September 24, 2001 or thereabouts at Logan Airport in Boston with an undeclared $1,60,000 in cash, he had told the US authorities that this money was withdrawn from Pictet Bank and submitted proof of the same to the US authorities.
Unfortunately, the then Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, in a fit of sympathy for the family, intervened and settled the case to enable Mr. Rahul Gandhi to return to India. I'm sure that the records of these happenings are available with the PMO. Hence, I urge you to treat this matter with great urgency and immediately take steps to see if this prima facie evidence is rebuttable, and if not, order that Mr. Rahul Gandhi be stripped of his citizenship and his membership of Lok Sabha forthwith. अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे करूँगा और ये 12 तारीख नवंबर को मैंने भेजा। जैसे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे थे, अब वो आ रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहला पेज 1, दिस इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये बड़ी मोटी डॉक्यूमेंट होती है तो मैं एक ही पेज मैंने निकाला है। उसमें नंबर 2 है, कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन इंग्लैंड एंड वेल्स। और उसके बाद लिखा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू कैरी आउट बिजनेस एज ए जनरल कमर्शियल कंपनी, यानी व्यापार करने के लिए उसने उसको बनाया। पेज 2, कंपनी का नंबर और लिखा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इंग्लैंड वेल्स हियर बाय सर्टिफाइज दैट बैकऑप्स लिमिटेड is this day incorporated under the Companies Act 1956 as a private company and the company is limited, given at Companies House, Cardiff on 21st August 2003. और फिर वो बार कोड सब है for authentication. Then page 3, company number so and so, back ops company name I, Rahul. तो सुब्रमण्यम स्वामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करनी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक चिट्ठी के जरिए मांग रखी है। उन्हें इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने का और इस पर एक्शन लेने का। और राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि दस्तावेजों के मुताबिक उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसमें राहुल गांधी ने असंवैधानिक काम किया है और उन्होंने खुद को ब्रिटेन का नागरिक दर्शाया है इन डॉक्यूमेंट्स में। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, ये बेहद ही गंभीर आरोप है राहुल गांधी के खिलाफ। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ राहुल गांधी पर हमला बोला है, उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं उसमें बैकऑप्स लिमिटेड है, ब्रिटिश कंपनी है और ये रजिस्टर्ड है वहां पर जी कंपनी। और इसमें राहुल गांधी का डेट ऑफ बर्थ भी सही है, लेकिन एड्रेस भी 2 फ्रॉगनेल वे, लंदन यूके लिखा हुआ है। यानी इनका कहना कि एक साथ, और ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है 2003 में जी, यानी एक साथ जो भारत के नागरिक हो, ड्यूल नागरिकता यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं है, तो ब्रिटिश नागरिक कैसे हो सकता है। स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की, उनको भी लेटर भेजा है और लोकसभा स्पीकर किनारे में पड़े हुए जो एलिमेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो पार्टी के मुख्य धारा धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी की बनती जा रही हैं और उन्हीं की आवाज पार्टी की मुख्य धारा और मुख्य आवाज बनती जा रही है। कारण ये है कि इन दोनों ने पहली बार ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, बार बार इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूं हमारे जनरल वीके सिंह साहब की और आजम खान साहब की। वीके सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो अवार्ड्स लौटाए जा रहे हैं वो उनके द्वारा लौटाए जा रहे हैं जो कि पेड लोग हैं, जिनको पैसा दे करके। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। और जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार लगातार इस खबर पर हमें अपडेट दे रहे हैं। जी रविंद्र, आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये बेहद गंभीर आरोप है और ये आरोप ज्यादा गंभीर इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, जो डॉक्यूमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया को दिया और हमारे पास भी है, मैं बता दूं कि इसमें लिखा कंपनी नंबर है 48745597 और ये रजिस्टर्ड है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में इंग्लैंड एंड वेल्स के जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स है। और 1985 के तहत कंपनीज
1985 के तहत प्राइवेट कंपनी के तौर पर ये रजिस्टर्ड है 21 अगस्त 2003 को। और इस कंपनी में राहुल गांधी बकौल, यहाँ पर ब्रिटिश नागरिक इसमें लिखा हुआ इस डॉक्यूमेंट में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने हम लोग को दिया है, मीडिया को दिया है। बैकऑप्स लिमिटेड ये कंपनी का नाम है, राहुल गांधी इसमें ओरिजिनल नाम राहुल गांधी, डेट ऑफ चेंज 10/10/2005 को इसका चेंजिंग हुआ है। उनका डेट ऑफ बर्थ भी इसमें जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी बता रहे थे 19/6/1970 बतौर स्वामी ये ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन इसमें जो एड्रेस है और इसमें जो नेशनलिटी है ये इस पर राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता अपने आप को दिखाया है। इस पर आपत्ति है कि दोहरी नागरिकता भारत में मंजूर नहीं है। ये एक साथ कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर सांसद भी हैं, ब्रिटेन के कंपनी में वो डायरेक्टर भी हैं, तो इनकी नागरिकता खत्म की जाए, इनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की है। जी रविंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे, आपके पास जैसे जैसे और अपडेट्स आएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर आरोप लगाए हैं दोहरी नागरिकता रखने